Assalamu alaikum everyone and welcome to today's episode of Let's Talk Education. हमने इस साल बहुत सारी चीज़ों पे तालीम के हवाले से बात की है. बहुत सारे ज़ाविये ऐसे हैं जिनको एक्सप्लोर किया है और मुझे लगता है कि सीज़न 3 में अब तक जितनी भी गुफ्तगू हुई है उसका क्रक्स, उसका कंक्लूजन यही है कि जब तक एजुकेशन गवर्नेंस हम इम्प्रूव नहीं कर पाते तो बाकी जितने एस्पेक्ट्स हैं तालीमी निज़ाम को लेकर पाकिस्तान में, शायद उनमें बहुत ज़्यादा बेहतरी हमें एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए. एट द हार्ट ऑफ एनी रिफॉर्म विज़-वी पाकिस्तान's एजुकेशन सिस्टम is the need for better governance. And for today's episode, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साजिद अली. Dr. Sajid Ali is one of the leading names in Pakistan when it comes to education governance. He's been part of several important interventions, initiatives, policy initiatives in Pakistan जो मुसलसल जो हमारा तालीमी निज़ाम है उसके इर्तिक़ा, उसकी एवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते रहे हैं. और बजाय ये इंट्रोडक्शन मैं दूँ डॉक्टर साजिद अली, आई वुड be very grateful if you could briefly talk about some of the contributions. There are many, but the contributions you really want to highlight जो आपके साथ वाबस्ता है पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम की एवोल्यूशन के हवाले से. जी, अस्सलाम वालेकुम. Thanks for inviting me. I think it's a pleasure and I appreciate this activity. Very little is discussed about education and whenever it's discussed is in the periphery. तो ये बहुत अच्छा है कि एक सीरीज़ है, टॉक सीरीज़ है विच इज़ फोकसिंग इंटायरली ऑन एजुकेशन. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर कंसेप्चुलाइजेशन एंड इनवाइटिंग मी. मैं इस वक्त एज ए प्रोफेसर एंड डायरेक्टर रिसर्च काम कर रहा हूँ आखान यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट में. आई think the most recent work that I have done is in terms of education policy is the introduction of teaching license policy in Pakistan and particularly in Sindh. So I was the one who led the white paper on teaching license policy, which eventually came to become a policy. I am also leading a research on public-private partnerships, trying to gather evidence around public-private partnerships in education. And I firmly believe that policies have to be evidence-informed. And for that, we don't simply need to talk, but we also have to attempt to find out where there's an evidence gap and where we need to do that. There are several things, and as we move forward, we'll try and I'll tell you more. और देख लेंगे कि मैं क्या क्या चीज़ें मुझे इंट्रोडक्शन में और कहनी है. In case you want to ask anything, do ask. I teach a course on policy studies. I also research around it. I'm part of several committees. National Education Policy 2009, current National Policy Framework, Sindh sector plans, and non-formal education policy. So there are several of these things that I've been involved either centrally or peripherally, but I keep a close tab on that. So see, I mean, to all of those, all our viewers and all our listeners, when I began with Dr. Sajid's introduction, तो मैंने कहा था कि he is an authority on education governance in Pakistan. I wasn't wrong. So thank you, Dr. Sajid. Thank you for that introduction. And with that, let's just really dive into today's conversation. बड़ा सतही सा सवाल लगता है, लेकिन हमें बेसिक से शुरू करने की ज़रूरत है. तो जब हम बात कर रहे हैं तालीमी निज़ाम की, उसकी बेहतर गवर्नेंस की, क्या चैलेंजेस हैं? आई थिंक इस तरह के टॉक शो में क्योंकि एक जनरल ऑडियंस के लिए होता है, बेहतर ये है कि जितना कम से कम जार्गन इस्तेमाल करते हो और कम से कम कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए बात करूं. तो मैं अगर मुझसे कहा जाए कि आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज चैलेंज विच यू थिंक इज द मदर ऑफ ऑल दीज गवर्नेंस चैलेंज, तो मैं समझता हूँ एडहॉकिज्म. पॉलिसी और पॉलिटिक्स का बहुत गहरा ताल्लुक है.
एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जनरली अगर हम यूएस से यूके जहाँ से हम ज़्यादातर सिस्टम बोरो करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, उसको मार्क करते हैं, एक डेमोक्रेटिक साइकिल चल रहा होता है जिसमें एक इलेक्शंस है आफ्टर 4 इयर्स या 5 इयर्स, वो मुनक्किद हो रहे होते हैं, लोग अपनी कोई एजेंडा लेकर आते हैं, मैनिफेस्टो लेकर आते हैं, लोग उस पर वोट करते हैं, फिर वो उनके पास 4-5 साल होते हैं जिसके ऊपर वो काम करते हैं और फिर दोबारा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं कि जी ये हमने किया है, नहीं किया है, दे इवेलुएटेड। और इसी तरह जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसमें भी दे फॉलो द लाइन। अब पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स की सर्टेनिटी नहीं है, इसीलिए हर चीज अनसर्टेन है। और जितना टाइम कोई भी सियासी जमात या कोई भी सरबराह, भले से वो सियासी जमात मुल्क का सरबराह हो या किसी इदारे का, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है, सब जगह एक शॉर्ट टर्म काम है, क्योंकि ये नहीं पता कि अगले महीने में होऊंगा या नहीं होऊंगा, अगले साल में होऊंगा या नहीं होऊंगा या होंगी। तो इस वजह से एडहॉकिज्म हमारे जो गवर्नेंस सिस्टम को बहुत मुतासर कर रहा है। अगर हम 1947 की एजुकेशन पॉलिसी उठाएं तो आई वाज सरप्राइज टू सी के जी उसमें पूरे मुल्क के जितने भी लोग थे जो की डिसीजन मेकर्स थे, चाहे डिपार्टमेंट के लोग हैं, ज्यादातर गवर्नमेंट, दे वर देयर फॉर 3 डेज। आज हम किसी भी बड़े से बड़े सेमिनार में किसी भी आला सतह के लोगों को बुला लें, मुश्किल से 2-4 घंटे से ज्यादा हम इतने सारे लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, अगर वो इकट्ठे हो भी जाए। इसका मतलब है हमें इकट्ठा बैठ के अगर डिपार्टमेंट को काम करना है, सोचना है, तो हम अपनी सोच से काम नहीं कर रहे होते। इसकी वजह यह है, फिर उसकी वजह से हमारे पास कुछ कंसल्टेंट्स फिर हमें मशवरा दे रहे होते हैं, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमें मशवरा दे रही होती हैं, कुछ नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमें मशवरा दे रही होती हैं। और क्योंकि हमारे एडहॉकिज्म की वजह से हमारा अपना विजन नहीं होता, तो हम कभी ये चीज हमें अपील करती है, टेक्नोलॉजी अपील कर रही है, जी टेक्नोलॉजी में आगे चले जाएं। कभी हम कहते हैं जेंडर बहुत बड़ा इशू है, हम जेंडर में चले जाते हैं। कभी कहते हैं ईसीडी बड़ा इशू है, ईसीडी पे चले जाते हैं। एंड इन डूइंग सो हमने बिल्कुल साबित कर दिया कि हमने ना तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स अचीव किए, ना हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करना चाह रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो पहली एजुकेशन पॉलिसी में और इसके अलावा जो बात की एजुकेशन पॉलिसी, जहाँ पे हमने कहा था यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए, वो आज तक नहीं है। तो किस्सा मुख्तसर मेरी नज़र में ये जो एडहॉकिज्म है, ये मेरा ख्याल में गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे यहाँ। मेरा जो अगला सवाल है डॉक्टर साजिद, नॉट एग्जैक्टली लिंक टू व्हाट यू आर सेइंग, बट जो आपने एडहॉकिज्म की बात की है, very grateful that you pointed that out. Again, the question I'm going to ask is not directly connected, but it just makes me think. Is there, specifically in terms of governance, is there a way that the private sector can potentially support in bringing some sort of stability, या जो एटलीस्ट जो एक सेंस ऑफ एडहॉकिज्म जिसकी आपने बात की है वो इंटायरली शायद एलिमिनेट नहीं होगा, लेकिन कुछ परमानेंस लाने में, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर इज़ जनरली कंसिडर्ड मोर एफिशिएंट। आई अंडरस्टैंड कि जब हम तालीमी निज़ाम की बात कर रहे हैं तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स पे बहुत गुफ्तगू हो रही है ऑफ लेट। व्हाट कैन पोटेंशियली वर्क इन टर्म्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स विज़ आवर एजुकेशन सिस्टम? बिल्कुल, इनॉर्मिटी ऑफ टास्क पाकिस्तान में इतना है कि आई थिंक इट रिक्वायर्स effort from everyone, and whether in all sectors, whether it be public, whether it be private, and गवर्नमेंट का क्या होता है, इट्स a constitutional responsibility 5 to 16. So government has committed कि जी हमें तो प्रोवाइड करनी है एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी टू एवरीवन. So it's a constitutional responsibility. It's a right of every child. प्राइवेट सेक्टर का मोटिव बड़ा डिफरेंट होता है. प्राइवेट सेक्टर कहीं भी दुनिया में वो प्राइवेट एक प्रॉफिट मोटिव के तहत काम कर रहा होता है. If there is no business, if there is no money, there is no need for anyone to do a business. आज अगर आप कोई नई एंटरप्रेन्योरशिप कोई प्रोग्राम स्टार्ट करें एंड इफ इट्स नॉट ब्रेकिंग इवन, तो आप उसको कंटिन्यू नहीं करते, क्योंकि बहुत सिंपल है, दैट्स व्हाई इट्स प्राइवेट. अच्छा, उसकी वजह से वो सिस्टम एफिशिएंट भी होता है. इसकी वजह से उस सिस्टम की आपके अंदर वो जो 3 E's कहते हैं, एफिशिएंसी एंड इक्विटी, और जनरली एफिशिएंसी, और आई थिंक
कॉस्ट इफेक्टिवनेस वगैरह उसकी हम देखते हैं। अब इनको मर्ज करने के लिए हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स की तरफ जाते हैं। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में मैं हमेशा से कहता हूं कि हमें एक एज एन स्पेक्ट्रम देखना चाहिए, rather than a midline between the two. There are multiple things that happen around public-private partnerships. बाज़ जगह प्राइवेट का एलिमेंट ज़्यादा होता है, बाज़ जगह गवर्नमेंट का एलिमेंट या पब्लिक का एलिमेंट ज़्यादा होता है। हमारे मुख्तलिफ मॉडल्स भी हैं। आपने देखा होगा सिंध में, पंजाब में, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन ये काम कर रही हैं। एक फिलेंथ्रोपिक मॉडल है जैसे अडॉप्ट ए स्कूल प्रोग्राम है। इसी तरह सिंध में एक नया मॉडल स्टार्ट हुआ है, एजुकेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन ईएमओ। पंजाब में अभी रिसेंटली आपने देखा होगा पीमा के तहत स्कूल्स को दिया गया है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के टू रन देम एफिशिएंटली। आई थिंक इसमें जो मैं अपनी रिसर्च के तहत देखना चाह रहा हूँ कि व्हाट आर द एविडेंस, क्योंकि इस वक्त जो मेरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्चुअली बेनिफिट करता है। अब बेनिफिट के लिए हम 3 पैरामीटर्स यूज कर रहे हैं अपनी रिसर्च में। एक्सेस को बेनिफिट कर रहा है, या क्वालिटी को बेनिफिट कर रहा है, या कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है। और इन 3 के तहत हम काम कर रहे हैं। हमने सरप्राइजिंगली आपको पता चलेगा, वी कैरिड आउट अ सिस्टमैटिक रिव्यू ग्लोबल लिटरेचर पे, और हमें ये देख के बड़ा अजीब सा महसूस हुआ कि लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में ये एविडेंस बहुत ज्यादा कंक्रीट अभी तक नहीं है। चाहे दुनिया भर की रिसर्च देख लें, इतना कंक्रीट एविडेंस पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है। पीपल हैव शेयर्ड, देयर आर केसेस जहाँ पे ये फायदेमंद रहा है, देयर आर केसेस जहाँ पे ये नुकसानदेह भी रहा है, एंड देयर आर केसेस जहाँ पे मिक्स रिजल्ट रहे हैं। तो कोई ऐसा हतमी फैसला अभी तक नहीं हो सका कि इट ऑलवेज यूजफुल। उसमें कॉन्टेक्स्ट डिपेंड करता है मुख्तलिफ। तो हम चाह रहे थे कि पाकिस्तान में ये एविडेंस डेवलप करें, और रिसर्च हमारी इंशाल्लाह आगे सामने आएगी। मेरा ख्याल में हमें जो पाकिस्तान में डिफरेंट तरह के मॉडल जो सालों से काम कर रहे हैं, जिसमें एक मॉडल है जहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट इन एड दे देती है, और एक इंडिपेंडेंट गवर्नेंस सिस्टम उसको ऑपरेट कर रहा होता है। हाँ। वो बहुत अरसे से हमारे यहाँ कामयाब चल रहा है, और बाज इस तरह के सिस्टम्स, एक लीड सिस्टम्स डेवलप हो गए हैं, जैसे एचिसन कॉलेज वगैरह है। ग्रांट इन एड जाता है, बट दे जनरेट ऑन देयर ओन सोर्स ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री वैसे चलता है कि आगे कामयाब हो जाता है। कुछ सिस्टम गवर्नमेंट के जैसे अडॉप्ट स्कूल हैं। सिंध में जिंदगी ट्रस्ट है जो शहजाद रईस साहब ने अडॉप्ट स्कूल किया है। इसके अलावा और भी लोगों ने स्कूल्स अडॉप्ट किए हैं, वो भी सक्सेसफुली चल रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि एक प्राइवेट पर्सन गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है। तो ये मॉडल काम कर रहे हैं। एक हमारे यहाँ ट्रस्ट बेस्ड स्कूल्स का आपको कॉन्सेप्ट होगा, जैसे आखिर एजुकेशन सर्विसेज जी के जी। अंदर स्कूल चल रहे हैं, कैथोलिक चर्चेस के अंदर स्कूल्स चल रहे हैं। इसी तरह जो बहुत सारी फाउंडेशंस हैं जो कि स्कूल चला रहे हैं, उनका मोटिव प्राइवेट नहीं होता, लेकिन वो प्योरली पब्लिक कंट्रोल में भी नहीं होती। लेकिन वो क्या करते हैं कि अपने, जैसे टीसीएफ है, द सिटीजन फाउंडेशन, वो भी फुल कॉस्ट रिकवरी नहीं करती। वो एक्चुअली मॉडल्स तो प्राइवेट चला रही है, लेकिन जो कॉस्ट उसको आ रही है वो अपने मुख्तलिफ चैरिटीज से या मुख्तलिफ तरीकों से उसको सब्सिडाइज करी। तो इस तरह के जो मॉडल्स हैं जहाँ पे प्राइम फैक्टर बिजनेस नहीं रहे या प्रॉफिट ना रहे, बल्कि क्वालिटी और एक्सेस रहे, वो मेरे नज़र में ज़्यादा सक्सेसफुल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल है, बजाय इसके कि जहाँ पे मोटिव प्राइवेट हो जाए कि जी वी हैव टू अर्न समथिंग आउट ऑफ इट। And a lot of, unfortunately, several models right now जो public private partnerships के हम एजुकेशन में देख रहे हैं, उसमें even जो फाउंडेशन स्कूल्स चल रहे हैं, not all of them but several of them, I would beg to differ that they're able to provide better quality education to the students, because जो प्राइमरी मोटिवेशन है वो वहाँ पे प्रॉफिट ही है। उनको जो वजीफ़ा मिल रहा है being part, as a foundation school, तो बस वो लगता महसूस ये होता है कि बस उनको गर्ज उसी से है। तो वो जो हम बेसिक वी डोंट इवन नीड टू लुक इनटू व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड, बट जस्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर आई फील इज़ वेरी क्वेश्चनेबल। हम जिन चीज़ों की निशानदही करते हैं पब्लिक स्कूल्स में कि बेसिक फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी, साफ़ पानी, टॉयलेट्स, वो नेसेसरली फाउंडेशन स्कूल्स के कुछ
प्राइवेट उसमें भी नहीं हमें दिख रहे कि दे आर फुली इक्विप्ड दैट वे. सो आई कंप्लीटली एक एग्री. चीज इसमें सिर्फ जी जी आखिरी एक चीज ये जी जी कहूंगा कि इसके एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि हमने बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है रेगुलेशन जी. थैंक यू. यस. कि हम आई थिंक अगर गवर्नमेंट भले से प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी को यूज करे बट आप उसकी एफिशिएंसी यूज करने के लिए आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी होना चाहिए. फॉर एग्जांपल आपके पास मॉनिटरिंग का इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि आप ये कर सकें. आपके पास एबल लोग हों जो कि क्वालिटी मॉनिटर कर सकें. तो आप देखेंगी कि अगर ये तमाम चीजें गवर्नमेंट बिल्ड करना शुरू कर दे तो हो सकता है वो इतना कॉस्ट इफेक्टिव ना रहे. क्योंकि अभी तो पैराडाइम ये है ना कि जी आपने एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को स्कूल दिया, दे विल रन इट एफिशिएंटली एंड ऑफ क्वालिटी एंड एवरीथिंग. बट नॉट एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज सेम. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इसको बड़ा अच्छे से चला लेंगी लेकिन बहुत यस. सारी इसको शायद चला भी ना सके. तो जो चला ना सके उनके लिए हमारे पास गवर्नमेंट की कोई मशीनरी हो जो कि उसको उस तरह से मॉनिटर कर सके, उस तरह से इवेलुएट कर सके, वो करे. अब अगर इस मशीनरी को आप डेवलप करने लगेंगे तो फिर आपका एक पैरेलल स्ट्रक्चर भी खड़ा हो जाएगा, उसकी भी कॉस्ट आप ऐड करेंगे, देन इट माइट नॉट बी एज कॉस्ट इफेक्टिव. तो व्हाट वी हैव टू सी इज स्ट्रक द राइट बैलेंस. क्योंकि एक गलती हम ये भी करते हैं कि वी while we undermine the ability of the government, we overestimate the ability of the private sector. यस. यस. एब्सोल्युटली. तो एब्सोल्युटली. हमारे पास अच्छा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप उस जगह पे चल सकता है जहां पे ये दोनों अपने ऑप्टिमम पे काम कर रहे हैं. और आई थिंक वी स्टिल हैव टू वर्क आउट टू सी व्हाट विल इवेंचुअली हैपन. बट एट द एंड ऑफ द डे इफ द सिस्टम बेनिफिट्स द चाइल्ड, then it's considered useful. And if it is reaching to the commitment of our constitution, then it's useful. Otherwise, अगर इसका profit motive और private motive हो जाएगा तो फिर I think we will only sell false promises. अच्छा, डॉक्टर साजिद, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी एजुकेशन, यहाँ पे हम बात करते हैं टीचर्स की. And although I have my own observations around कि टीचर्स पे भी जिस किस्म का हमने बोझ डाला हुआ है पब्लिक सेक्टर में, बट वील टॉक अबाउट दैट लेटर. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो टीचर लाइसेंसिंग के हवाले से पेशरफ्त है, दैट टीचर्स like medical practitioners or legal practitioners can operate with a license only. How do you see that? Do you think it's going to help in terms of enhancing the quality of the system? Are there any gaps that you would want to identify? I think research across the globe and even in Pakistan suggests that one of the most important in-school factor is the teacher. एक आउट ऑफ स्कूल फैक्टर भी होते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड, सोशल कैपिटल, वो सारे फैक्टर्स नहीं. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन स्कूल फैक्टर इज द टीचर. हमारा जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट, आखन यूनिवर्सिटी, जब ये बना था 30 years ago, the philosophy of it was that we want to bring change through bringing teachers who could be change agent. हमने आखन यूनिवर्सिटी ने जब हमारे डीन आए and he said कि we should be working something about these things and we did a global scan कि दुनिया में कहीं भी ये परमिट नहीं है कि unless you have proper certification or proper licensing आप पढ़ा नहीं सकते स्कूल में. मैं एडिनबरा यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा था लेकिन मैं एजुकेशन में कर रहा था. But when I asked, can I teach in a primary school, I wasn't allowed. उन्होंने कहा आपको पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन एजुकेशन लेना पड़ेगा फिर आप चला सकते. तो इवन इफ यू आर डूइंग पीएचडी इन एजुकेशन, आप अगर स्कूल में पढ़ाना चाहते हो तो यू हैव टू शो सर्टेन क्रेडेंशियल्स, यू हैव टू शो सर्टेन pedagogical skills, content, child handling things. तो वो सर्टिफिकेट लाजमी होता है. पाकिस्तान में वैरायटी ऑफ एजुकेशन इतनी है. एक तो हम पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को डिवाइड कर देते हैं, फिर आप विद इन प्राइवेट सेक्टर आप देखें तो हमारे पास एक एलीट प्राइवेट स्कूल भी हैं, तो हमारे पास मिड रेंज भी हैं, और हमारे पास लो फी प्राइवेट स्कूल्स भी हैं. और इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल ऑफ दीज पब्लिक स्कूल में तो फिर भी कुछ रिक्वायरमेंट है कि जी आपके पास बीएड या एमएड होना चाहिए. प्राइवेट स्कूल में देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट. फिर हमने कहा कि अगर टीचर को चेंज करना है तो द टीचर
हैज टू हैव प्रॉपर क्वालिफिकेशंस। और जिस तरह मेडिकल की फील्ड में है, हम अलाउ नहीं करते कि अनलेस यू हैव अ गुड क्वालिफिकेशन एमबीबीएस, आपको हम मेडिकल प्रैक्टिस नहीं करने देंगे। इसी तरह अगर आपकी नर्सिंग, आप लॉयर्स को देखें, जितनी भी प्रोफेशनल फील्ड्स हैं, अनलेस यू हैव अ क्वालिफिकेशन, यू हैव अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस, आपको हम सर्व करने नहीं देंगे। एजुकेशन में ऐसा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जो एजुकेशन की क्वालिफिकेशन है वो भी, उसमें भी बहुत वैरायटी है। अ बीएड फ्रॉम वन इंस्टीट्यूशन एंड अ बीएड फ्रॉम अनदर इंस्टीट्यूशन वुड मेक अ ह्यूज डिफरेंस। तो इसलिए हम ये सिंपली इंप्रूविंग द क्वालिफिकेशन भी काम नहीं कर सकते थे। तो हमने ये सोचा कि इन पाकिस्तान यूनिक डायनामिक्स, हम अगर टीचिंग लाइसेंस इंट्रोड्यूस करें, एंड दैट लाइसेंस वुड सर्व नॉट एज एन इन एंड इन इटसेल्फ, बट एज अ सीव, कि हम्म। आप पहले तो उसमें ये भी है कि आपकी कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बट टू टेस्ट दोज क्वालिफिकेशन वी हैव टू गो थ्रू अ टेस्ट। आगे चल के हम उसमें और डेवलपमेंट लेकर आ सकते हैं, लेकिन सो फार पाकिस्तान के डायनेमिक्स को देख के हमने कहा कि टेस्ट में बी द लीस्ट कंट्रोवर्शियल एंड मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ लुकिंग एट टीचर्स। आगे चल के हम इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ थिंकिंग अबाउट टीचिंग लाइसेंस। हमने तकरीबन 2020 में काम शुरू किया। सिंध में हमने पाकिस्तान लेवल पे किया, जो वाइट पेपर है। बहुत सारे इंटरनेशनल स्कॉलर्स को बुलाया, वी कैरिड आउट सेवरल पॉलिसी डायलॉग्स, आई वाज लीडिंग दैट। उसके ऊपर फिर हमने एक वाइट पेपर ऑन टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी इशू किया। Fortunately, the Minister of Education in Sindh, he gave his blessing, Sardar Shah. We were joined by the partners, Zindagi Trust, Durbeen, Shahzad Roy, Salma Alam, Ziauddin University, Dr. Rana, and STEDA, Sindh Teacher Education Development Authority. So with these partners, we went on to develop a policy, or eventually the policy got approved. I had the opportunity to present it to the Sindh cabinet. और ना सिर्फ अप्रूव हो गई, उसको इम्प्लीमेंट करना भी हमने शुरू कर दिया है। द फर्स्ट टीचिंग लाइसेंस टेस्ट कंडक्टेड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, और तकरीबन 640 licensed teachers in Sindh are going to be given their licenses first time. देखना पड़ेगा कि क्या ये वाकई आगे जाती है, बट वो मैं कह रहा हूँ ना, एडॉकिज्म, कंसिस्टेंसी, दिस इज द वर्क ऑफ 3-4 years एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। लेकिन एक कंसिस्टेंटली अगर आप एक चीज करेंगे तो यू रन थ्रू द फुल साइकिल। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज द पेनासी ऑफ एवरीथिंग, बट अनलेस यू इम्प्लीमेंट, you won't have an opportunity to assess it. You won't have an opportunity to improve on it. तो हम इस तरह से चल रहे हैं। इट वॉज कम्प्लीटली एन इंडिजिनस थिंग। लाइसेंस का जो फॉर्मूला है वो तो इंटरनेशनल ग्लोबल है, आई कैन नॉट से इट्स नॉट एन इंटरनेशनल पॉलिसी, लेकिन द वे वी ट्राई टू मेक इट हैपन इन सिंध वॉज लोकलाइज, एंड वी होप कि ये चीज़ें दूसरे प्रोविंसेस में भी और हम बातचीत में हैं कि वो आगे चलें। द आइडिया इज कि हम अच्छे टीचर कर सके। हम चाहते हैं कि अच्छे टीचर, अगर ये लाइसेंस हो, उसको हम इंसेंटिव बेस कर रहे हैं, हम पेनल्टी बेस नहीं कर रहे। बाज लोगों के शक में ये होता है सिंध में कि जी सबको लाइसेंस लेना पड़ेगा तो कल से सब टीचर बंद हो जाएंगे। हमने बिल्कुल डिफरेंट इसमें पॉलिसी में अप्रोच रखी, हमने इंसेंटिव बेस किया कि अगर आपको लाइसेंस नहीं है तो यू कैन स्टिल कंटिन्यू, बट अगर आप लाइसेंस लेंगे तो आपको ग्रेड अपग्रेड हो जाएगा। तो अगर आप 14 ग्रेड में है, आपका 16 ग्रेड हो जाएगा। सो हमने इंसेंटिव क्रिएट किया है टीचर्स के लिए, ताकि वो अपने शौक से ये लाइसेंस लें, क्योंकि जो चीज शौक से करेंगे उसका फिर इंसेंटिव भी होगा, हायर ग्रेड्स होगा, और फिर उसके नताइज भी अच्छे निकल सकेंगे। सो फार हमने इसको इस तरह से चलाया, बजाय इसको पेनल्टी बेस करने के हमने इसको इंसेंटिव बेस किया है। इवेंचुअली अगर ये चीज़ अच्छी होती है तो इट हैज़ टू बी एक्सपैंडेड टू अदर प्रोविंसेस, इवन टू द प्राइवेट सेक्टर, ताकि एक मिनिमम बेंचमार्क ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी टीचर्स हम तैयार कर सकें, और उनके थ्रू हम क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी चिल्ड्रन एंड लर्निंग आउटकम्स हम डेवलप कर सकें। एंड बस एक छोटा सा फॉलो अप क्वेश्चन, ताकि जो हमारे सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनके लिए कोई एम्बिग्विटी ना रहे। सो दिस, ये जो पायलट फेज में, फ्रॉम व्हाट आई गैदर, ये लाइसेंसिंग इन सिंध इज सॉर्ट ऑफ, इट हैज़ जस्ट टेकन ऑफ, एंड एक तरह से एक पायलट फेज में है। सो दिस अप्लाइज ओनली टू टीचर्स राइट नाउ इन द पब्लिक सेक्टर? Right now it only applies to the teachers in public sector. लेकिन इसमें जो टेस्ट में प्राइवेट लोग भी बैठ सकते हैं। ठीक है। फॉर देम इट्स नॉट कंपल्सरी, इवन गवर्नमेंट के लिए कंपल्सरी नहीं है, बट
अगर आप लेते हैं तो आपका इंसेंटिव गवर्नमेंट ने इंश्योर कर दिया है। अगर इंश्योर। प्राइवेट सेक्टर भी इंसेंटिव इंश्योर करेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये भी एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव के तौर पे आप देख सकते हैं कि आखन यस। यूनिवर्सिटी इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, दूरबीन इज अ प्राइवेट ट्रस्ट, स्टेडा is a government authority, Ziauddin University is a private thing. So, but here I think the public-private partnership is happening in the right kind of way to benefit eventually the public. बिल्कुल ठीक है। सो यस, आई मीन देर आर सेवरल मॉडल्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, एंड जब मैं शुरू में भी बात करी थी, दीज आर द सॉर्ट ऑफ मॉडल्स दैट आर, आई फील, सस्टेनेबल एंड दैट कैन एक्चुअली ब्रिंग वेरी टैंजिबल चेंज। क्योंकि हम एक्सेस, रिटेंशन, क्वालिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इन पैरामीटर्स को तभी इंश्योर कर सकते हैं जब सस्टेनेबिलिटी, एंड आई फील, well, kudos to you people and lots of luck with this pilot. I would really want to closely follow. How can we follow its journey? Sorry? How can we follow the journey of this pilot if we want to? By journey you mean कि how did we made it happen or how No, are over we the continuing with it? from this point over the years, जो इसका progress इसकी रहेगी, अगर हम उसको देखना चाहें तो हम बार बार आपको तंग करें, या हाँ या कोई हमने तरीका है? आखन यूनिवर्सिटी में हमने एक पूरा वेब पेज इस पे डेडिकेट किया हुआ है। इफ यू ठीक है। विजिट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट्स वेबसाइट और वहाँ पे टीचिंग लाइसेंस के आप टैग को क्लिक करें, पूरी जर्नी आप ट्रैक कर सकते हैं कैसे हुआ है, न्यूज़ कवरेज क्या है, सेमिनार्स की रिकॉर्डिंग्स भी वहाँ पे मौजूद हैं, वाइट पेपर भी है, लाइसेंस पॉलिसी भी है। ये तमाम चीज़ें आपको मेरा ख्याल में दूरबीन, क्योंकि क्रॉस पोस्ट करते हैं, दूरबीन की भी साइट पे मिल जाएगा, आपको स्टेडा की साइट पे भी मिल जाएगा, हमारी साइट पे भी सारा आपको मिल जाएगा। बट हमने काफ़ी उसको बड़ा डिटेल सा पेज बनाया है, तो इफ़ यू वांट आखिर यूनिवर्सिटीज पेज, गो हिट द पेज एंड यू विल नो। एंड इफ देयर आर एनी फर्दर क्वेरीज आई एम हैप्पी। द गुड थिंग इज कि जो लोग पॉलिसी बनाने में थे वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी शामिल है। तो टीचिंग लाइसेंस कमेटी एक स्टेडा ने बनाई है जिसमें आई एम द मेंबर, दूरबीन से हैं उसके मेंबर्स, मैडम राना हु हैपन टू बी केयर टेकर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, वो भी उसकी मेंबर है। तो आई थिंक इट्स अ रेयर एपिसोड इन पाकिस्तानी एजुकेशन पॉलिसी वेयर things are motivated by internal people without any kind of international agency uh, timeline imposed Very on things. important. And that's why probably it's working. I've written on it. एक दो मैंने जर्नल आर्टिकल्स भी पब्लिश किए हैं, ब्लॉग भी लिखा है, तो यू कैन एक्सेस ऑल ऑफ दोज थिंग्स देयर, ताकि लोगों को इस पे ज़्यादा बातचीत इस पे पता चल जाए। और ग्लोबली भी हमने कोशिश की इसको शेयर करने की। Thank you so much, Dr. Sajid. और अब हम we will shift gears now, and we'll shift gears to हमने ज़ाहिर है गुफ्तगू एजुकेशन गवर्नेंस पे कर रहे हैं, तो वो तो क्रॉस कटिंग रहेगा, लेकिन आप इस वक्त करंटली वी अंडरस्टैंड यूर इन्वॉल्व इन सेवरल इनिशिएटिव्स, वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स, प्राइवेट सेक्टर के भी हैं, इंटरनेशनल भी हैं, पब्लिक सेक्टर इनिशिएटिव्स भी हैं जिनमें आपने डायरेक्टली कंट्रीब्यूट किया है। तो हम उनमें से कुछ के हवाले से ज़्यादा जानना चाहेंगे। वील स्टार्ट विद द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन, GPE किक्स। क्या है, क्यों है, क्या अफादियत है उसकी पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम के लिए? सो वी वांट टू लर्न फ्रॉम यू। GPE KICS, KICS stands for Knowledge Innovation Exchange. It's GPE Global Partnership for Education Initiative, जो कि वो ग्लोबली उन्होंने लॉन्च किया है, एंड इट्स मेनली ऑपरेटिंग इन साउथ लैटिन अमेरिका में है, अफ्रीका में है, एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया में है। The prime motive, as the knowledge suggests, knowledge innovation exchange. So whether it be knowledge in terms of research or it's an innovation that has been practiced anywhere in the globe, it has to be exchanged. Exchange with an intention to make this knowledge and innovation learning make its way to inform policy. तो इसका भी वही इनिशिएटिव है जो हम एविडेंस इन्फॉर्म पॉलिसी की बात कर रहे थे। यहाँ पे किक्स ने एक इम्पेटस दिया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट वैल्यूज साउथ साउथ कनेक्शन। अब जैसे मैं किक्स के 3 हब हैं, बल्कि 4 हब हैं। 2 हब वो अफ्रीका में है, एक लैटिन अमेरिका में है, एक हब जिसका मैं मेंबर हूँ वो EAP कहलाता है, ईस्ट EMAP,
जिसमें कि हमारा यूरोप यानी कि बेसिकली सेंट्रल यूरोप की बात हो रही है, मिडिल ईस्ट, मिडल ईस्ट, एशिया एंड एशिया, पैसिफिक, ई मैप। पैसिफिक। तो उसमें हमारे पास तकरीबन 22-23 ममालिक शामिल हैं, जिन में हर मुल्क में एक उन्होंने कोऑर्डिनेटर नॉमिनेट किया है। इट्स मोर लाइक अ स्मॉल work that they expect from that person. I'm the coordinator from Pakistan, GPE Kicks. The prime motive is कि हम local efforts को mobilize करें with the public, private people who are available. We develop an steering committee. पाकिस्तान में भी इस किक्स की एक स्टीयरिंग कमेटी डेवलप हो गई है, जिसको हमारे फेडरल सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन हैं, वो उसको चेयर करते हैं, वानी साहब। और उसमें प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन भी है, उसमें इंटरनेशनल पार्टनर्स, एनजीओ, सबकी रिप्रेजेंटेशन उसमें मौजूद है। एंड बिकॉज पाकिस्तान में एजुकेशन डिवॉल्व सब्जेक्ट है, तो ये बाकी ममालिक से ये मेरा ख्याल में शायद सबसे बड़ी स्टीयरिंग कमेटी पाकिस्तान की है। उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि जीपीई की मुख्तलिफ फंडेड रिसर्च जो है, जो पाकिस्तान में भी चल रही है और मुख्तलिफ ममालिक में चल रही है, उन रिसर्च से जो लेसन्स लर्न हुए हैं उनको एक पॉलिसी फोरम के ऊपर प्रेजेंट किया जाए, उन पे उसका रोल पॉलिसी में देखा जाए। उसके अलावा एक्सचेंज के मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स हैं, वो कैसे किए जाएं। किक्स के अंदर कुछ लर्निंग साइकिल्स होती हैं कि जिसमें हम ख़ास तौर पे सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एनजीओस, प्राइवेट सेक्टर, उनमें कुछ नॉलेज की जो डिज़ायर होती है उसके लिए कुछ लर्निंग साइकिल्स होती हैं, वो प्रेजेंट करें। प्लस इसमें एक एनुअल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इसमें ब्लॉग सीरीज है। तो आइडिया ये है कि extract the information and knowledge from the south, amplify it and let it known to the south as well as to the north। तो ये इसका एक बहुत छोटे अंदाज में मैंने आपका इसका बताया है। Thank you. Thank you so much, Dr. Sajid. And now we move on to two other things that you're involved in. How do you juggle all of this? Is my question because there's so much happening, right? So I have many people to support me. right, but I'm just wondering, with so much happening on the profession, वो work-life balance कहाँ होगा आपकी जिंदगी में? I'm just trying to figure that out. That's a casualty. हाँ, so I try to I generally try and work in a more delegated way। तो मेरे साथ रिसर्च एसोसिएट्स हैं, मेरे साथ मुख्तलिफ टीम मेंबर्स हैं, एंड आई बिलीव इन ऑटोनॉमी एज वेल एज लेट पीपल वर्क। तो मेरे साथ जो वाइट पेपर ऑन टीचिंग लाइसेंस पे काम किया था, आफाक अहमद, ही वाज माय को ऑथर। तो बिकॉज ही वर्क विद मी, ही वाज माय एमफिल स्टूडेंट एंड ही गॉट द को ऑथरशिप। उसके बाद हमने काफ़ी सारा लिखा भी है। He got an opportunity for PhD and right now he's in Texas. But he's still connected. I work with my PhD students, I work with other associates, I work with several colleagues. तो मिलजुल के काम हो जाता है। चले, तो फिर जो आपके दो बहुत जो आई फील इस वक्त जो एजुकेशन का ओवरऑल लैंडस्केप है, तो उसमें देयर इज अ लॉट ऑफ चैटर अराउंड डेयर, जुर्रत तहकीक, right? That's the tagline, right? So there's a lot of chatter around there, and there's a lot of excitement around the sort of data that might emerge as a result of this project. So that's one side of my question जो हम ज़्यादा आपसे जानना चाहते हैं कि डेयर के हवाले से भी हमारी ऑडियंस को अगर आप थोड़ा सा इन्फॉर्म करें। और फिर क्योंकि हम डेटा की रिसर्च की बात कर ही रहे हैं, तो पाए की क्रिएशन में you've had a very important role to play. Pakistan Institute of Education, I feel, in fact, 2 episodes ago, was it? Yes, Dr. Suraya was also a guest on this podcast, right? So, DARE के हवाले से भी जो आपका रोल है और जो आपका विजन है, we want to learn about it, what your contribution has been, and then also PIE की creation और and now that it's evolving in a very beautiful, wonderful way, we want to learn about all of it from you. I think पाई की क्रिएशन ही पाई में कंट्रीब्यूशन की बात कर सकते हैं। पाई तो गवर्नमेंट की एंटिटी है, इट वाज क्रिएटेड बाय देम, लेकिन दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, डेयर और हमारा कंट्रीब्यूशन टू पाई। डेयर इज डेटा एंड रिसर्च इन एजुकेशन, विच इज एन FCDO फंडेड प्रोजेक्ट,
इसमें हमारा जो OPM आखन यूनिवर्सिटी एंड साइट सेवर, वी आर कंसोर्शियम पार्टनर। डेयर RC कहते हैं हम इसको, रिसर्च कंसोर्शियम। उसके दो मेन प्रोंग हैं, जिसमें एक प्रोग्राम तो फंडिंग रिसर्च का है, दूसरा प्रोंग है कैपेसिटी बिल्डिंग का। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंड प्रोंग, जिसमें कैपेसिटी बिल्डिंग है। जो रिसर्च फंडिंग है, जिसकी ज़्यादा चैटर हो रही है क्योंकि ज़्यादातर अभी क्योंकि फंडिंग ग्रांट्स लॉन्च हुई हैं, उसके साइकिल 1 साइकिल 2 आया है, आई होप साइकिल 3 भी आ जाए। हर साइकिल में वी आर ग्रांटिंग researches, and I think it's a very rare moment in the history of Pakistan जहाँ पे प्योर रिसर्च के लिए फाइनेंसेस अवेलेबल हैं और डिफरेंट काइंड के रिसर्च प्रपोजल सबमिट हो रहे हैं। वन ऑफ द चैलेंज इन पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम इसके जो फाइनेंसेस फॉर रिसर्च अवेलेबल नहीं है। इसी की वजह से जो रिसर्चर्स हो रहे हैं, इवन कॉम्पिटेंट रिसर्च, दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन व्हाट दे वांट टू रिसर्च। दे ऑफन रिसर्च ऑन व्हाट इज अवेलेबल रादर देन व्हाट इज नीडेड। तो हो सकता है, मैं चाहता हूं कि ये फंडामेंटल चीजें जिन पे हमें रिसर्च करनी चाहिए इन पाकिस्तान पे, बट बिकॉज देयर आर नो फाइनेंसेस अवेलेबल, आई हैव टू डू दोज थिंग्स इन पेरिफेरी। सेंट्रली मुझे किसी आज इस ग्रांट पे अप्लाई करना है या उस कॉल फॉर प्रपोजल पे अप्लाई करना है, एंड आई एम लिमिटेड बाय द कॉल फॉर प्रपोजल्स। ये भी एक इंटरनेशनल क्रिटिक है जो प्रोफेसर केनेथ किंग है, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा के, अब तो रिटायर हो गए। यूज्ड टू कॉल इट कंसल्टेंसी रिसर्च, कि जो मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे कंसल्टेंसी रिसर्च हो रही है, एंड बाय दैट इट मीन्स के नेशनल एजेंडा फॉलो होने के बजाय दी लिमिटेड एजेंडा ऑफ स्मॉल इंटरेस्ट को फॉलो हो रहे हैं। तो रिसर्च कंसोर्शियम, इट्स एजेंडा, though it has given its parameters, but still it's very, very expansive. It allows almost most topics that are worth researching in Pakistan need to be researched. मेरे पास इसकी जिम्मेदारी जो है, आई एम द co-lead for capacity strengthening, with me Dr. Takbir from Aakan University, and from OPM Asfandiar Khan, and Sami Sadozai Saab, and other team members Nimra and Arij, and Numan Siddiqui, and Bilal Saab and Fatma Da, we are working together. So that's why I said कि टीम की वजह से काम हो जाता है। One part of it, of capacity building, was to build the capacity of producers of research and to build the capacity of users of research. ज़्यादातर प्रोड्यूस जो रिसर्च होती है वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में होती है, तो देयर वाज एन एलिमेंट ऑफ इट जो अभी अंडर डिस्कशन है। यूनिवर्सिटीज़ की कैपेसिटी स्ट्रेंथनिंग, कुछ वर्कशॉप्स हो चुकी हैं। एक उसका प्राइम फोकस था कि हम पाई को स्ट्रेंथन करें, टू carry out research, to assess the quality of research, and to also not limited by research finding, but also make this research become part of policy. तो उस एलिमेंट पे मैं खास तौर पे मेरी जो जाती कंट्रीब्यूशन है वो कि हाउ कैन वी कन्वर्ट रिसर्च टू पॉलिसी। और मैंने आपके सामने जो पहले बताया था एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी, वो प्रिसाइजली यही था कि जिसमें हमने एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट किया था कि किस तरह हम अच्छी रिसर्च को, ग्लोबल रिसर्च को एक पॉलिसी तक ले जा सकते हैं। तो उसमें हम पाई के साथ काफ़ी सेंट्रली काम कर रहे हैं। डॉक्टर शाहिद सुरैया, डॉक्टर जैगम, डॉक्टर इदरीस, सफ़ीर साहब, एंड दीज आर इनक्रेडिबल पीपल। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन का जो रिवाइज्ड वर्जन है, इट यूज्ड टू बी एपाम, एकेडमी फॉर एजुकेशन प्लानिंग मैनेजमेंट, अब वो एक थिंक टैंक के तौर पे सामने आ रहा है। एंड आई थिंक हमारी बहुत अच्छी उनसे इंटरेक्शन हो रही है। एवरी अदर वीक आई एम इन इस्लामाबाद, बट ऑनलाइन भी इंटरेक्शन हो रही है। तो हाउ कैन वी कैरी आउट पॉलिसी डायलॉग, हाउ कैन वी डेवलप पॉलिसी ब्रीफ्स, how can we make things happen in such a way. So that's something that we are very excited, and we are working together at PI, or hopefully once all of this is over, we will have something. But जैसा कि मैंने कहा कि हमारी कोशिश ये है कि we work it on a longer term, and that's the advantage of having local partners like Aakan University. So even if, for example, the project is over, we will have our base on the grounds, and as my dean says that, and our university president says that, we have to connect with the public sector, we have to work with them. And so I think my colleagues at PIE know that we have
बूस्टर शॉट जिसे कहते हैं कि क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है, पैसा है, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो हम बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं, लेकिन हम लॉन्ग टर्म एक काम उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करें। एंड माय कॉलीग्स एट साइट सेवर्स एंड ओपीएम, दे आर विद मी, और हम इंशाल्लाह ये काम करते रहेंगे। और शायद सुराय का इंटरव्यू होता है तो आपको पाई के वर्क का तो उस इंटरव्यू से पता चल गया होगा, लेकिन ये कि हमारा इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है वो इंशाल्लाह आपको इससे पता चल गया होगा। Inshallah. And well, with inshallah also mashallah, and thank you for your contribution towards APAM se Pi 2.0. I think it's just really It's brilliant. doing incredible work. It is इसमें जो incredible पाई work. की जो पाकिस्तान एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स है, आई रिमेम्बर आई डिड आई वाज अ साउथ एशियन विजिटिंग फेलो एट ऑक्सफोर्ड इन 2011, और वहाँ पे मैंने आई थिंक इफ आई रिमेम्बर प्रोफेसर हाउसन, इफ आई रिमेम्बर द नेम करेक्टली, he was initial person who worked under UNESCO and visited Pakistan, और पाकिस्तान जो NEMIS नेशनल एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो उसका जो आर्किटेक्चर, इनिशियल आर्किटेक्चर स्टैब्लिश किया था, he was there and he was very praiseworthy for NEMIS at that time and PI now। उन्होंने कहा कि इतना स्ट्रॉन्ग डेटाबेस तो हमारे पास एजुकेशन का यूके में भी मौजूद नहीं है, तो और हमारे पास ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। what we need to, and I think अगर आप पाई की भी रिपोर्ट्स देखें तो they are more and more crisp, they are becoming more and more policy geared, and I think with the kind of data available, that's our emphasis and work with PI as well, कि हम किस तरह से जो काम, जो data already मौजूद है ना, how can we use this data to also help making decisions। nobody knows कि how long they are there, तो उनको बहुत क्विक फिक्सेस करने होते हैं, इसीलिए हमें पाई में जितना तेज डिसीजन मेकिंग और जितना डेटा बेस्ड डिसीजन इन्फॉर्म डेटा इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग अवेलेबल है, उतना आई थिंक वी विल फील आवरसेल्व्स इन सेफ हैंड्स। Thank you so much for being such a sport, for being very patient with our questions, and इतना मुफस्सिल तरीके से इतने ठहराव के साथ आपने you walked us through everything. So thank you so much for being part of this conversation, and thank you for all the wonderful work that you're doing to make the education system and education governance in Pakistan stronger. Thank you. It's my pleasure. Thank you very much for having me. All right, everyone. We've come to the end of today's episode of Let's Talk Education. हमेशा की तरह जाने से पहले हम इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं, जो मेरे लिए एटलीस्ट की टेक अवेज थे आज की गुफ्तगू से, जो हमने डॉक्टर साजिद अली के साथ की। सबसे अहम चीज़ उन्होंने बिल्कुल शुरू में पॉइंट आउट की कि जब हम पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम की बात करते हैं तो एडहॉकिज़म की वजह, शायद सबसे बड़ी वजह है एडहॉकिज़म, जिसकी वजह से पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम जो है उसको जो इस्तेकाम चाहिए, जो स्टेबिलिटी चाहिए, उससे वो आ रही है। तो जब हम पाकिस्तान में एजुकेशन गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, उसको बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं, तो शायद सबसे अहम बात यही है कि हमें इस एडहॉकिज़म की अप्रोच से बाहर निकलना है, एंड वी नीड टू लुक एट लॉन्ग टर्म इंटरवेंशंस, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ जिनका कांस्टेंट फॉलो अप रहे, ताकि वो इवॉल्व होती रहें, बेहतर से बेहतर होती रहें। हमने बात की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के हवाले से, उनके प्रोज डिस्कस किए, उनके कॉन्स डिस्कस किए, हमने डिफरेंट मॉडल्स डिस्कस किए आज, विच आई थिंक वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू रियली पुट आउट देयर, कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में किस तरह की चीज़ें हैं जो वाक़ईतन जिन्होंने पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया है, और किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए हैं, जिस तरह फाउंडेशन स्कूल्स की बेहतर रेगुलेशन। एंड देन फाइनली I feel there's a lot of wonderful work happening in terms of data, in terms of research, in terms of the evolution of how education governance in Pakistan can potentially reach an optimal level, and so fingers crossed on that point. And इसके साथ मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द मिलेंगे।